السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک ویران ندی کے پاس سے ملون خاتون گھوڑے کی رسی پکڑے آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس لمحے کچھ سپاہی ادھر ادھر سے نکل کے سامنے آتے ہیں۔ سپاہیوں کی سربراہی کرنے والا ایک بزرگ شخص ہوتا ہے جو ملون خاتون کو دیکھتے ساتھ ہی کہتا ہے، خاتون ٹھہرو، تمہارا راستہ کہاں ہے؟ تو ملون خاتون کہتی ہیں کہ ذل علما۔ یہ سن کے وہ بزرگ کہتے ہیں، مبارک ہیں وہ جو اسلام میں تلواروں کو تیز کرتے ہیں، ان ماؤں کو جو سحری کے وقت اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دودھ پلا کر لوریوں سے جوان کر کے اللہ کی محبت اور ایمان دے کر اولاد کی پرورش کرتی ہیں۔ جواب میں ملون خاتون کہتی ہیں، تینوں ساتوں 40 حق والوں کے وقت اور دور کے لیے ایمان سے ہمیں شرف بخشنے والے حق تعالیٰ کی محبت میں اے واللہ۔ پھر پوچھتی ہیں کہ ذل علما کس طرف ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں چلیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی بزرگ ملون خاتون کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ سفید داڑھی والوں کا جرگہ لگا ہوتا ہے۔ کائیوں کے ساتھ ساتھ وہاں دیگر پرچم نصب ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سربراہ کہتا ہے، کائی کی بیگم ترکو کی اصل ماں تشریف لائیے۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور بزرگوں کا سربراہ کہتا ہے، عظیم عثمان غازی کی معزز خاتون، ہم کائی کا حال آپ سے سننا چاہتے تھے، لیکن ہم نے یہ چاہا کہ آپ ہمیں اس ماں کی آنکھوں کا دیکھا اور کانوں کا سنا حال بتائیں جو وہ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتی ہے جو ہم نہیں سنتے۔ ارطغرل اور عثمان بے نے کافروں کے ہاتھوں سے کتنے ہی علاقے فتح کر لیے، ایک نیا وطن بنایا، لیکن کیا یہ وطن اگر عثمان بے اپنے رب سے جا ملیں تو ایک طاقتور ریاست میں بدل پائے گا؟ ملون خاتون کہتی ہیں، آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ عثمان بے کی عمر وفا نہیں کرے گی، میں سمجھتی ہوں۔ آپ کا اندیشہ کس کے لیے ہے؟ اورحان کے لیے؟ تو بزرگ کہتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ نے اورحان کی پشت پناہی کی ہے، کیا آپ نہیں جانتی کہ دریا کے رخ بدلنے سے کتنی آفات آتی ہیں؟ ملون خاتون پوچھتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اورحان سگا بیٹا ہے، میں اس لیے کمزوری دکھا رہی ہوں؟ میں اولاد میں سوتیلے اور سگے کا فرق نہیں کرتی، وہ ایک ہی گود میں پروان چڑھے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، عثمان صاحب نے علاؤالدین کو ایک ذمہ داری سونپی، اورحان اسے قبول نہیں کرتا، کیا علاؤالدین قانون سے ناواقف یا بہادری سے محروم ہے کہ آپ اورحان کی طرف جھکتی ہیں؟ ملون خاتون کہتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں ممتا کی کمزوریوں کے آگے جھک کر حق کو نہیں دیکھ سکتی، اتنی اندھی ہوں؟ بالکل نہیں، بلکہ میں بھی عثمان کی طرح سوچتی ہوں، سرداری اس کی ہے جو اس کا حقدار ہے، صرف بورصہ فتح کرنے والا اس پوسٹ سے اکتفا نہیں کرے گا، وہ تخت پر بیٹھے گا، سرداری سے بھی اکتفا نہیں کرے گا، سلطان بنے گا، اور جب تک کوئی اس کے برعکس ثابت نہ کر دے تب تک میری نظر میں امیدوار صرف اور صرف اورحان بے ہی ہے۔ کائی کے ولے میں بوران اور اورحان عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ عثمان صاحب کی حالت دیکھتے ہوئے اورحان علاؤالدین چلا اٹھتا ہے۔ اورحان کی چیخنے کی آوازیں سنتے ساتھ ہی خواتین مہات داخل ہوتی ہیں۔ اورحان ان سے پوچھتا ہے، علاؤالدین کہاں ہے؟ کوئی جا کر اسے بلائے۔ ملون خاتون عثمان صاحب کے پاس آتی ہیں تو عثمان صاحب پسینے سے شرابور ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں، عثمان میں تمہیں کس حالت میں دیکھ رہی ہوں؟ بوران پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، میں بورصہ کی قید میں بھی اتنی تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ غمگین ہوتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اورحان بابا بابا پکارتا ہے۔ حلیمہ غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میرے بابا کو کیا ہوا ہے؟ ملون خاتون کہتی ہے، بابا ٹھیک ہو جائیں گے بیٹی۔ حلیمہ اورحان سے کہتی ہے، بھائی اگر بابا کو کچھ ہو گیا تو؟ جواباً اورحان کہتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملون خاتون روتے ہوئے بار بار عثمان عثمان پکارتی ہیں۔ عثمان صاحب ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہیں تو اورحان کہتا ہے، ہم یہیں پہ ہیں بابا۔ حلیمہ کہتی ہے، بابا فکر نہ کریں، ہم سب آپ کے پاس ہیں۔ ملون خاتون اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں، میری غیر موجودگی میں ہر کوئی اپنی ذمہ داری جانتا ہے۔ ملون خاتون کہتی ہیں، یہ کیسی بات ہے عثمان؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، آگے کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، تمہاری ذمہ داری اتحاد اور نظام کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب کی آنکھیں پھر سے بند ہو جاتی ہیں تو سب میرے سردار بابا بابا چلا اٹھتے ہیں۔ بوران کہتا ہے، میرے سردار آنکھیں کھولیں مت کریں۔ اورحان ایک دم سے اٹھتا ہے اور جانے لگتا ہے تو ملون خاتون سے پوچھتی ہیں، اورحان کہاں جا رہی ہو؟ تو اورحان کہتا ہے، قبیلے میں اتحاد یعنی نظام یعنی میرے بابا، میں ان کی دی گئی ذمہ داری پوری کرنے جا رہا ہوں، میں درد دینے والے سے شفا حاصل کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ آگے بڑھ کر سرداری خیمے میں داخل ہوتا ہے کہ علاؤالدین اس کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، بھائی بابا؟ تو اورحان کہتا ہے، کافروں کا زہر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ علاؤالدین حیرانگی سے کہتا ہے، زہر
कैसा जहर? जवाब में उरहान कहता है, जहर की बात इस खेमे से बाहर नहीं जाएगी अलाउद्दीन। हम दुश्मन को ये कहने की जुर्रत नहीं देंगे कि वो उस्मान बे को उनके अपने ही खेमे में नहीं बचा पाई। ये कहते साथ ही उरहान जाने लगता है तो अलाउद्दीन उसे पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उरहान कहता है, वो शिफा या तो तुम ढूंढोगे या मैं लाऊंगा। जब तक ना मिले तुम पर या मुझ पर नींद हराम है। बाबा तुम्हारी अमानत में है। ये कहते साथ ही उरहान चला जाता है। वो शदीद गुस्से में आगे बढ़ते हुए कारा खलील के पास आता है। नीलोफर हलीमा भी उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। उरहान कारा खलील से कहता है, मेरे लिए उस हकीम को लेकर आओ कारा खलील। ये सुनते साथ ही कारा खलील आगे बढ़ जाता है। हलीमा भी उसके पीछे जाती है और वो दोनों हकीम के खेमे में दाखिल हो जाते हैं। खेमे में हकीम नहीं होता और चिराग बुझा हुआ देखकर कारा खलील कहता है, चिराग अभी बुझा है, यानी कि हकीम अभी ही निकल के भागा है। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों तेजी में खेमे से बाहर आते हैं तो एक खातून भागती हुई उनके पास पहुंचती है और हलीमा से कहती है, हलीमा खातून, हकीम अभी पिछली तरफ से कबीले से भागा है। ये सुन के हलीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, जल्दी से भाई को खबर दो, उसे पकड़े जाने का एहसास हो गया है कमीना। अगले मंजर में हलीमा और कारा खलील जल्दी में उरहान के पास पहुंचते हैं और कारा खलील कहता है, हुजूर हकीम भाग गया है। तो उरहान कहता है, ये काम इतना आसान नहीं है, तुम कबीले में रुको खलील, बाबा को तन्हा मत छोड़ो। ये कहते साथ ही उरहान हलीमा और नीलुफर के साथ खेमे से निकलता है, घोड़े पर सवार होता है और वहां से रवाना हो जाता है। जंगल में डरा हुआ हकीम घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा है और एक मुकाम पे रुककर घोड़े से उतरने के बाद उसे भगा देता है और खुद दूसरी जानिब निकल जाता है। कबीले में यजीद शहंशाह और दीदार के पास आता है और कहता है, बाबा उस्मान साहब, अलाउद्दीन साहब नहीं चाहते कि कबीले में किसी को खबर हो, लेकिन सूरत हाल तबाहकुन है। ये सुनते साथ ही शहंशाह गमगीन हो जाता है और कहता है, ठीक है, ये मातम का नहीं मजबूत खड़े होने का वक्त है। फातिमा खातून लश्करगाह के लिए नगोल से हथियार लाएंगी, तुम उन्हें खुशामदीद कहोगी, खुद को अच्छी तरह से पेश करोगी। यजीद खुश होते हुए कहता है, जो आपका हुक्म। ये कहते साथ ही वो खेमे से निकल जाता है और दीदार यजीद को रोकते हुए कहती है, देखो तुमने देखा, हर बुराई में खैर होती है मेरे बेटे। फातिमा का दिल जीतने के लिए ये जिम्मेदारी तुम्हारे लिए एक मौका है। वो लड़की अपने बाबा को बहुत पसंद करती है, तुम जानते हो। तुम उसके साथ रहो और उसे तसल्ली दो। वो हलीमा जैसी बिल्कुल नहीं है, उसे अकेला मत छोड़ना, ठीक है बेटे। ये सुनते साथ ही यजीद चला जाता है। उधर घोड़े के निशानात देखते हुए उरहान रुक जाता है और घोड़े से उतर के सूरत हाल का जायजा लेता है। करीब ही में हकीम छुपा हुआ एक चिट्ठी लिख रहा होता है। निशानात देखते हुए उरहान कहता है, ये एक घोड़ा नहीं है, आने जाने वाले बहुत हैं। हकीम वहाँ छुपाया हुआ कबूतर निकालता है, उसमें चिट्ठी डालता है और उसे उड़ा देता है, मगर वो संगीन गलती कर बैठता है। कबूतर के उड़ने की आवाज सुनते साथ ही उरहान एकदम से उस तरफ मुतवज्जो होता है और वो हकीम को देख जाते हैं। इसलिए में हकीम के कुछ साथी वहां आते हैं और एक हकीम से कहता है, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जब तक मजबूरी ना हो, जब तक जहर खत्म ना हो जाए, तुम यहाँ मत आना। क्या मैंने नहीं कहा था? तो हकीम कहता है, उस्मान साहब की तबीयत बहुत नासाज है, मैं उनके फौत हो जाने से खौफजदा हूँ। मगर वो शख्स कहता है, तुम इसमें कामयाब नहीं हो सके, फौरन कबीले लौटो, उस्मान मरता है तो तुम भी मरोगी। हकीम कहता है, मैं कबीले वापस नहीं जा सकता, वो मुझ पर शक करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक अहम खबर है। एनागोल से एक काफिला कबीले की तरफ आएगा, उसमें हथियार होंगे। काफिले की सरबराही उस्मान साहब की बेटी फातिमा कर रही है। यह सुन के वो तीनों बहुत परेशान हो जाते हैं और हलीमा कहती है, मेरी बहन। हकीम मजीद कहता है, मैंने कबूतर भेजा है, मेरी बदौलत वो सब कुछ जान जाएंगे। यह सुन के वो शख्स कहता है, तुम्हारी जरूरत अब नहीं रही, मार डालो सिपाहियों से। यह सुनते साथ ही सिपाही हमला करते ही हैं कि हलीमा का फेंका हुआ खंजर उस सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। अगले लम्हे उरहान हलीमा और नीलुफर के साथ उन पर टूट पड़ता है और उन्हें काटता ही चला जाता है। हकीम को भागते हुए देखकर उरहान के इशारे पर हलीमा भी उसके पीछे भागती है। नीलुफर भी उरहान का भरपूर साथ देते हुए काफिरों को मौत के घाट उतारते ही चली जाती है। उरहान भी एक साथ कईयों का काम तमाम कर देता है। काफिरों का सफाया हो जाता है और हलीमा हकीम को लेकर आ जाती है। उरहान उससे कहता है, अब बोलो। तो हकीम कहता है, उन्होंने मुझे उस्मान साहब को जहर देने का कहा कि उन्हें बहुत ज्यादा बीमार करूं, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो मरे, वो बीमार करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें उनकी मुर्दा नहीं बीमार हालत में जरूरत है। ऐसा कुछ होगा मैं नहीं जानता था, हुजूर वो बर्दाश्त नहीं कर सके, खुदारा मुझे मत मारे। उरहान पूछता है, तुम्हें मेरे बाबा को जहर देने के लिए किसने
कहा, तुमने उन्हें जहर कैसे दिया? हकीम कहता है, ये सब यहाँ है, मुझे इजाजत दें। उरहान की इजाजत मिलने के बाद हकीम आगे बढ़ता है और धोखे से बस्ते में से खंजर निकाल के उरहान पे हमला करने ही लगता है कि उरहान उसके हमले को नाकाम बनाते हुए खंजर उसके गले पे तान लेता है, मगर देखते ही देखते हकीम के मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है। ये देख के उरहान, नीलुफर और हलीमा चौंक जाते हैं। हकीम तड़पते तड़पते जमीन पे गिर जाता है। हलीमा कहती है, हकीम का खंजर जहरीला था। कबीले में अलाउद्दीन शहंशाह से कहता है, बदमाश हकीम, उसने मरहम के बजाय उनके पांव पर जहर लगा दिया। शहंशाह कहता है, काफिर उनके खेमे तक घुस आए हैं। उरहान साहब हक बजानिब हैं। इस जहर वाले मामले में सदरान तक को खबर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमें मुश्किल हालत में डाल दिया है। उस्मान साहब ने ठीक वक्त पर आपको अपना नायब मुकर्रर किया है अलाउद्दीन साहब। उन्होंने कबीला बगैर सरबराह के रहने की इजाजत नहीं दी। इससे पहले कि कुफार उस्मान साहब की बीमारी को मौका बनाकर इस्तेमाल करें, फौरन दुश्मन पर हमला करने का वक्त है। वो देख लें कि उस्मान साहब नहीं है तो अलाउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। इसलिए में मलून खातून वहाँ पे आती हैं और पूछती हैं, ये कैसी जल्दी है शहंशाह साहब? उस्मान साहब जिंदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। शहंशाह कहता है, हम सब भी यही चाहते हैं कि वो सलामत रहे मलून खातून, और कई सालों तक हमारे सरबराह रहें। और उस्मान साहब की भी यही ख्वाहिश है कि अलाउद्दीन साहब उनके नायब हों, उनकी जिंदगी में भी और मौत के बाद भी। मलून खातून कहती है, जिंदगी में नायब होता है, मौत के बाद नायब नहीं होता, हुक्मरान होता है। अल्लाह का शुक्र है वो वक्त अभी नहीं आया। अलाउद्दीन कहता है, माँ, इन बातों के लिए भी अभी वक्त नहीं आया। तो मलून खातून कहती हैं, ये बात मुझे नहीं, इस बात को यहाँ लाने वाले को कहनी चाहिए अलाउद्दीन। हालिया दिनों के वाकयात पे गौर करो। क्या किसी का मकसद तुम्हें तख्त पर बिठाना है या तुम्हारे भाई को खोखला करना है? शहंशाह कहता है, मलून खातून, अपने बेटे की मोहब्बत अलाउद्दीन की हिमायत के तौर पर दिखाएं, उसके दिल में शक डाल कर नहीं। मलून खातून गुस्से से कहती है, क्या आपकी बातें आपके कान सुन रहे हैं शहंशाह साहब? जो कोई मेरी औलाद की मोहब्बत पे शक करने की जुर्रत करेगा, वो मेरे सरदार का साथी ही नहीं भाई भी हो तो मैं माफ नहीं करूंगी। अलाउद्दीन कहता है, बस माँ बस। फिर शहंशाह से कहता है, शहंशाह साहब, सरदारान को फौरन खबर भेजें, फौरन जिरगा मुनक्किद होगा। तो शहंशाह कहता है, जिरगे पर ज़ाया करने का वक्त नहीं है अलाउद्दीन साहब, और जरूरत भी नहीं है। मोहर तुम्हारे पास है, आपकी बात हुक्म है। अलाउद्दीन कहता है, ठीक कह रहे हैं शहंशाह साहब, हुक्म मेरा ही है और मेरा हुक्म जिरगा मुनक्किद करना है फौरन। मलून खातून कहती है, उरहान का इंतजार करना चाहिए। मगर अलाउद्दीन कहता है, माँ, अब रियासत के पास उरहान का इंतजार करने का वक्त नहीं बचा। हम वो कौम हैं जो अल्लाह के हुक्म पर जान भी कुर्बान कर देती है। दुनिया की ताकत हमारे ईमान के आगे कुछ नहीं। न हमें तख्त का लालच है, न ताज की ख्वाहिश। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जीते हैं।